السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر ایس نالج۔ کالی قمیض اور سر پر عجیب سے ٹوپی پہنے کچھ لوگ ایک گنگا بنا کر کھڑے ہیں۔ درمیان میں آگ جل رہی ہے، زمین پر عجیب طرح کی لائن نما نقشہ بنا ہوا ہے۔ بیک گراؤنڈ پر بجتا ہلکا سا دل دہلا دینے والا عجیب قسم کا میوزک اور اٹیلین زبان میں دہرائے جانے والے کچھ منتر۔ خفیہ سوسائٹی یا خفیہ گروپ کا نام ہم سنتے ہیں تو ایسی تصویر ہمارے دماغ میں آتی ہے۔ انٹرنیٹ پر خفیہ سوسائٹی کے کی ورڈ سرچ کریں تو آپ کو ایک نام پڑھنے کو ملے گا، ایلومیناتی۔ یہ نام آپ نے فلموں کہانیوں میں کئی بار سنا ہوگا۔ کانسپیرسی تھیوریز کی مانے تو ایلومیناتی دنیا کا سب سے خطرناک مذہب نما تنظیم ہے، جس کے اندر بل گیٹس، اوپن وینفیئر جیسے نام شامل ہیں۔ ان تھیوریوں کی مانے تو امریکہ کے صدر سمیت ملکوں کے درمیان لڑائی کروانے اور سرکار گرانے میں اس تنظیم کا ہاتھ رہا ہے۔ ان کانسپیرسی تھیوریز میں کتنی سچائی ہے یہ تو آپ خود سوچ کر بتا سکتے ہیں، لیکن ماضی میں ایلومیناتی جیسی تنظیم ہوتی ضرور تھی۔ کیا تھی اس تنظیم کا ماضی؟ یہ تنظیم وجود میں کیسے آئی؟ کیا یہ تنظیم شیطان کی تنظیم ہے اور یہ کام کیسے کرتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے، تو آخر تک ضرور بنے رہیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آر ایس نالج اور میں ہوں آج آپ کا ہوسٹ سمیع اللہ۔ دوستو، لفظ ایلومیناتی جس کا مطلب علم کی روشنی کے عالم بردار ہے، دوسری طرف اس لفظ کا مطلب شیطان ملعون کی پوجا کرنا بھی بنتا ہے۔ یہ تنظیم ویسے تو اس وقت ہی وجود میں آ گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو آسمان سے نکال کر زمین پر پھینکا تھا، لیکن اس کا باقاعدہ بنیاد البرٹ پائی کو بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ انسان تھا جو شیطان کا بہت ہی بڑا پجاری تھا، اور 1723 میں اس نے فری میسن نامی تنظیم سے نکل کر ایلومیناتی کی بنیاد رکھی۔ فری ممبرز 4 جماعتوں کو ایسی ایک تنظیم ایلومیناتی میں ملا دیا۔ البرٹ پائی وہ انسان تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ تیسری جنگ عظیم کی وجہ اسلام ہی بنے گی، اور یہ ہماری تیسری جنگ جو ہوگی وہ اسلام کے ساتھ ہی ہوگی۔ لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں تیسری جنگ کی کرتے تھے، مگر اس ٹائم پہلے 2 جنگیں بھی نہیں ہوئی تھی۔ دوستو، تنظیم کی نمائندگی اختیار کرنے کے لیے باقاعدہ حلف لیا جاتا ہے، اور شیطان کی خدائی کا نعوذ باللہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، یعنی شیطان کو اپنا رب ماننا پڑتا ہے، اور یہ وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ آج کے بعد میری اس روح کا مالک شیطان ہے، یعنی یہ روح شیطان کو بیچ دینی پڑتی ہے۔ یوں شیطان ان کی زندگیوں سے اس طرح جڑ جاتا ہے جیسے انسان کا کوئی حصہ جسم سے جڑ جاتا ہے۔ اور دوستوں، دوسری بات یہ ہے کہ تمام عبادتیں صرف شیطان کی ہی کرنی پڑتی ہیں، سجدہ کرنے سے لے کر انگلیاں تکونوں، یہاں تک کہ احرام مصر کے عجیب و غریب نشان بنانا، اور جانوروں اور انسانوں تک، یہاں تک کہ بچوں تک کی قربانیاں شیطان کو پیش کرنی پڑتی ہیں، اور یہ اس لیے یہ لوگ کرتے ہیں تاکہ شیطان ہم کو اپنی طاقتیں دے۔ دوستو، ایک شخص تھا جس کا نام تھا روکر مارنیو۔ ستمبر 22 سال 1988 میں اس کی موت ہوئی۔ یہ شخص اس تنظیم کا حصہ تھا جو تمام ایلومیناتی تنظیم پرسنل رسومات میں شامل ہوتا تھا۔ ایک روز اس روکر مارنیو کی زندگی میں وقت ایسا آیا جس میں دنیا کی سچائی اس نے اپنے سامنے دیکھا، جب شیطان اس کے سامنے انسانی شکل میں آیا اور اس کے مردہ ماں باپ اس کے سامنے ملاقات کرتے رہے۔ شیطانی دنیا کا ایسی سچائی جو یقیناً آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ دوستو، 1997 میں روگن نے اے ٹرپ انٹو دا سپر نیچرل نام کی اپنی ایک بایوگرافی ویڈیو ریکارڈ کروائی۔ یہ ویڈیو 30 گھنٹے 25 منٹ کی ویڈیو ہے۔ اس نے اس ویڈیو میں وہ سب کچھ بیان کر دیا جو اس نے پوری زندگی میں اس شیطانی تنظیم کے اندر رہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا اور خود محسوس کیا کہ اور اس نے
शैतानी दुनिया के सब राजों को एक एक करके खोल कर रख दिया कि कैसे शैतान अपने लीडरों के जरिए गुमराह करके खुदा की तरह उन इंसानों से अपनी इबादत करवाना चाहता है। दोस्तों, रोगर कहता है कि मैं उस वक्त एक नौजवान लड़का था जब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। कहता है कि उसके बाद मेरा एतबार खुदा से और अपने मजहब ईसाईयत से मुकम्मल तौर पर उठ गया। जवानी में ही जाकर उसने अमेरिका नेवी को ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई, जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला किया और उसके बाद जीत गया तो एक रोज उसके बॉस ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम एक खास किस्म की पार्टी में शिरकत करो जिसमें टॉप लेवल के लोग उस पार्टी में शामिल होते हैं। शायद उसका बॉस जान गया था कि रोजर अब किसी खुदा पर यकीन नहीं रखता, इसलिए उसको काबू करना आसान है और ब्रेन वॉश करना भी ज्यादा आसान होगा। रॉबर्ट ने सवाल किया, सर इस पार्टी के अंदर खास क्या है? तो यहाँ पर उसके बॉस ने कहा, तुम क्या अपने मुर्दा माँ बाप से मिलना नहीं चाहोगे? रॉकर ने यह सुना ही था कि इसको मजाक में ले लिया, शायद बॉस का दिमाग खराब हो गया है। कहने लगा कि रॉकर, सर ये तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आज के दौर में ऐसी बचगाना बातें अच्छी नहीं लगती। मगर बॉस ने कहा, कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि बिल्कुल सीरियस हूँ और हकीकत बोल रहा हूँ। लगता है कि तुम शायद डर गए हो। क्या ऐसा ही है रोकर? ये सुनकर रोकर एक बार तो सकते में आ गया। फिर जब डर का ताना दिया गया तो रोकर मान गया और कहा, तो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ जो आप बोल रहे हैं क्या वो सच भी है या नहीं। You're chicken. That's all I needed to hear. I said, when do we go to a seance? So one Saturday evening, we were in the place. It was her first time, very beautiful. We played the medium. There was a lady. She had a gorgeous new home in Montreal. And there were about 20 invited guests there. I wish I was one of them. दोस्तों, फिर रोजर कहता है कि मैं अपने बॉस के साथ अगले दिन इसी पार्टी में चला गया जहां दुनिया के बड़े बड़े टॉप लेवल के सियासतदान, बड़े बड़े बिजनेसमैन और फोर्ब्स सितारे आए हुए थे। मैंने देखा कि वहां पर एक काला अबाया जैसा लिबास पहनी एक औरत स्टेज पर मौजूद है। उसकी शक्ल इंसान की लग रही थी, पर उसने अपना चेहरा पूरी तरह बिगाड़ कर रखा हुआ था। उसके लंबे लंबे नाखून थे। ये औरत अपने पास आने वाले तमाम लोगों की ख्वाहिशात पूरी कर रही थी। लोग इससे जो भी ख्वाहिश करते थे, मुझे दौलत, शोहरत या किसी मुर्दा शख्स से मिलने की ख्वाहिश है, तो ये औरत उसको पूरा करवा देती थी। इसी दौरान एक औरत स्टेज पर आकर उस औरत से कहती है कि मुझे अपने एक मुर्दा दोस्त से मिलना है। One man said, I would like to my friend for me. So the medium says, let me inquire of the spirit. Yeah, the spirit will talk with you. And that big masculine voice was heard in the place. It says, hi Frank, it's nice of you to ask for me to talk with you. And they had a little chat. जिसका कुछ माह पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन मैं अपनी तरफ से उसको ठीक से गुड बाय नहीं बोल सकी थी। यह ख्वाहिश सुनकर कुछ देर बाद वो लड़का पर्दे के पीछे से हमारे सामने मौजूद था। यह देखकर मैं एक बार ना शॉक में चला गया। ये शख्स बिल्कुल उसी लड़के की शक्ल और आवाज के अंदर बात कर रहा था। इसी दौरान वो लड़की अचानक रोने लगी। इसके अलावा उसने अपनी ख्वाहिशात बताई तो उस लड़की ने पूरा किया, और इसके अलावा और भी बहुत से लोगों ने अपनी ख्वाहिशात बताई तो उस लड़की ने पूरा किया। अब मेरी बारी आई थी। मैं अंदर से डरा हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था, ना ही कभी सोचा था। खैर, जब मेरी बारी आई तो मैंने उस औरत से कहा, मैं अपने मुर्दा माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। यह कहना ही था कि मेरे मुर्दा माँ बाप पर्दे के पीछे से निकल कर आ गए। इनसे मैंने बहुत सारी बातें भी की, जी भर कर। यूं मेरी पहली बात तारो सीक्रेट सोसाइटी एलुमिनाटी से हुआ, और इसके बाद मुझे एक मुआहदे के बाद इस ग्रुप का हिस्सा बना लिया गया। फिर मेरा बॉस कहने लगा
कि तुमको मैं अपने मास्टर से मिलवाना चाहता हूँ, जो हायर ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों से अफजल एक रूहानी मखलूक है, मगर इंसान की शक्ल में है। इसने सारी जंगें देखी हैं और हम इंसानों से अफजल हैं, और वो था शैतान। तो दोस्तों, रोगर ने कहा उसकी फिर मुलाकात एक शख्स से करवाएगी जो पैंट कोट में था और इंसानी शक्ल में था। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं शैतान हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलते हो, मेरी इबादत करते हो, मेरी तमाम रसूमात पूरी करते हो और तुम बड़े बड़े गुनाह करो तो तुमको दुनिया की तमाम ताकतें मैं दे दूंगा। तो दोस्तों, ये थी रोगर की कहानी। इसके बाद उसकी मौत होगी और लोग कहते हैं कि इसके पीछे भी इस शैतानी तंजीम का हाथ था। दोस्तों, ये एलुमिनाती तंजीम, इसमें शैतान की कई किस्में हैं। जैसा कि इनका पहला शैतान का नाम है लूसीफर, और गुमान किया जाता है कि ये इब्लीस शैतान का खुदा है, और इसको यूनानी जबान में और निशिया कहा जाता है, जो इनके मुताबिक सबसे बड़ा समुद्री खुदा है। हदीस पाक में भी आता है, शैतान अब तक समंदर पर बिछाता है। इसके अलावा इनका दूसरा शैतान बीफोबैद है, जिसकी शक्ल बकरे से मिलती जुलती है। इसके बकायदा सींग और डरावनी शक्ल होती है। इनके न सिर्फ बुत बनाए जाते हैं, बल्कि खुफिया तौर पर इनकी इबादत गाहें भी कायम की जाती है, और इन्हें शैतानी चर्च कहा जाता है। और इस चर्च में इस तंजीम के तमाम मेंबर इकट्ठे होकर शैतान की इबादत करते हैं। इनका सबसे बड़ा इलामती निशान ये आंख है, जो कि दज्जाल की आंख है, और जो इनका मसीहा है। ये अपनी एक आंख बंद करके और दूसरी आंख खोलकर ये लोग दज्जाल की आंख की निशानी बनाकर अपने पूरे एलुमिनाती होने का साबित करते हैं। दोस्तों, इस तंजीम के बकायदा दर्जे होते हैं, जो कि 1 से लेकर 37 तक होते हैं, और हर दर्जा एलुमिनाती शैतान की ताकतों के हिसाब से बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता है। दोस्तों, इनका मरकज अमेरिका और इसराइल है, और इनका मकसद पूरी दुनिया में तमाम मजहब को खत्म करके अपना घटिया मजहब का प्रचार करना है, जिसमें ये कामयाब भी हो रहे हैं। आजकल काला जादू जो हर कोई कर रहा है, इन लोगों का ही कारनामा है। दोस्तों, ये लोग बहुत ही राजदारी से काम करते हैं, और ये आम लोगों को बेहतरीन इखलाक के साथ अपने ग्रुप में शामिल करते हैं, जैसे इन्होंने रोगर के साथ किया। दोस्तों, इस एलुमिनाती तंजीम के बारे में कहा जाता है कि ये लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पर एक ऐसी मशीनें रखी जाती हैं जिसमें कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले, सुनामी डाली जा सकती है। दोस्तों, इसी तरह एक मारूफ बिजनेसमैन ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह बताया कि मैं और मेरा दोस्त बैनुल अक़वामी सतह पर एक पार्टी में मौजूद थे। वहाँ पर इनकी मुलाकात एक खातून से हुई। बातों बातों में उसने इसके मुतालिक बताया, जब हमने इससे मरे हुए दोस्त से बात करवाने को कहा तो इसने कुछ पढ़ा, तो उनका दोस्त जो मर चुका था उससे बातें करने लगा, और इस बात पर मुतासर होकर वो लोग उस पर ईमान ले आए, जो कि उसका दोस्त नहीं बल्कि शैतान था, जो उनके दोस्त की आवाज में बात कर रहा था, जिसने उनको गुमराह कर दिया। दोस्तों, इनकी पढ़ाई जाने वाली किताबों में से मोरान ओल्ड कोमा भी काबिल जिक्र है, जो एल्बर्ट पाई ने लिखी थी। इस किताब में लूसीफर को खुदा कहा गया है, जो कि शैतान है, और सोसाइटी के मेंबर को कहना है कि लूसीफर तमाम मदद की किताबों में शैतान कहा गया है, तो इसलिए शैतान को सबसे ज्यादा इल्म हासिल है, और इसी वजह से शैतान को ही खुदा होना चाहिए। और लोग ये भी कहते हैं कि अम्मा हवा ने फल खाकर अच्छा किया था। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में जितनी भी सूरत हाल नजर आ रही है, जो जंगें हो रही है, जो मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है, हर एक के पीछे इस तंजीम का हाथ है। आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला हमको दज्जाल और शैतान के शर से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और काफी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, और वीडियो सही लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और नए आने वाले नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के लिए दी इजाजत, आपका होस्ट समीउल्लाह। अल्लाह हाफिज।